Hello students, in this video we will study the shortest distance between the lines in space. Let us consider two lines. This line L1, L2, and there is a small shortest distance. Okay, this distance we denote it by SD, shortest distance. Using formula, first I would like to tell you what is L1. Suppose L1 is R vector is equal to A1 plus lambda B1, and L2 is R vector A2 plus mu direction vector B2. Then shortest distance between these two is defined as the magnitude of A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2. B1 cross B2, this dot product is here, divided by mod of B1 cross B2. This is the formula of shortest distance between two vectors. I would like to write it again. Students. The shortest distance between the two vectors, two lines, is actually magnitude, is a mod of A2 minus A1 into B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. Somewhere you can say that it is nothing but a of projection of vector A2 minus A1 on B1 cross B2. Okay, so you can see that A2 minus A1 will be a line joining the two position vectors. Like for suppose you can, it's very difficult to imagine, but if you know the concept, like suppose there is a plane like this and another plane is inclined in this way, and if there are two lines, suppose there is a line over here and another line is over here, we don't know the angle between them, the directions are here. So if you take any one point here and another point here, and if you join like this, so suppose this is A1 passing point, this is A2. So A2 minus A1 projection on a direction which is perpendicular to both of these vectors. मतलब इनका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, सपोज ये इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर इनसे इंटरसेक्ट करते तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो ही हो जाता. तो इसीलिए एक कंसेप्ट आता है स्क्यू लाइंस का. स्क्यू लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे दो प्लेन्स में रहते हैं जो आपस में ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है. जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया ये वाले प्लेन में. आर गेटिंग माय पॉइंट? एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया और एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ना ही ये आपस में पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है. तो ऐसे लाइंस में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इमेजिन करो, सपोज ये पासिंग पॉइंट है इस लाइन का और ये पासिंग पॉइंट है, A2 माइनस A1 आप निकाल दो.
ठीक है, और इन दोनों डायरेक्शंस को परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन है, उसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन जो रहेगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो सपोज ये a1 है और ये a2 है, इसका प्रोजेक्शन a2 माइनस a1 वेक्टर का प्रोजेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन जो कि दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो स्क्यू लाइंस की मदद से आप इजीली समझोगे. मैं दूसरे एक आध वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, सो लेट अस फाइंड हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, हाँ, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ओके, shortest distance is 0 if lines are intersecting. Let us take one question and solve how to find out the shortest distance between two lines. Write the question. Find the shortest distance. Find the shortest distance between the two lines say r vector is equal to I plus 2j plus k plus lambda times I minus j plus k, and second line vector r is equal to 2I minus j minus k plus mu times 2I plus j plus 2k. इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. सबसे पहला काम क्या करना है, ये वेक्टर a1 वेक्टर b1, वेक्टर a2 वेक्टर b2. तो सॉल्यूशन वेक्टर a1 I plus 2j plus k, वेक्टर b1 I minus j plus k, वेक्टर a2 2I minus j minus k, वेक्टर b2 2I plus j plus 2k. क्या करना है, पहले b1 क्रॉस b2 निकाल देंगे डिटर्मिनेंट की मदद से. I j k 1 minus 1 1 2 1 2. तो b1 क्रॉस b2 निकाल दीजिए, कितना आएगा आंसर, डायरेक्टली बता सकते हैं. I माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3I कैप, ठीक है, माइनस j 2 माइनस 2, ये तो वैनिश हो गया तो ज़रूरत ही नहीं है, प्लस k 1 प्लस 2 प्लस 3k कैप. b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए. b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, तो 3√2 आ गया इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का. नेक्स्ट a2 माइनस a1 वेक्टर क्या होगा, a2 माइनस a1 वेक्टर इट इज नथिंग बट व्हाट 2 माइनस 1 मतलब 1I कैप माइनस j तो माइनस 3j कैप और माइनस k माइनस 2k कैप. देयरफॉर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, डॉट प्रोडक्ट. तो किस किस का निकालेंगे, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. तो -3 -1 तो ये -3 हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे अपन. हाँ, 0 j तो 0 हो गया, +3 इंटू -2 -6,
तो -9 हो गया. Therefore, shortest distance, which is equal to what? Magnitude of A2 minus A1 dot product with B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. देखो प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है ना. तो ये एस डी आप निकालोगे, प्रोजेक्शन जैसा निकाला, एस डी आप निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाला, फाइनली आंसर क्या मिला? इसका डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ -9 अपॉन 3√3 3√2. तो आंसर क्या आएगा? 3/√2. दिस इज द आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन. एक बार अच्छे से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा. तो एक बार एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपको हो जाएगा. ठीक है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 है तो लाइंस क्या है? कोप्लेनर हो जाते हैं. क्योंकि ये देखो ध्यान से अगर देखेंगे, इट इज व्हाट? एसटीपी. ठीक है. तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों, ये एक लाइन के ऊपर वाला पॉइंट है, दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट है, और B1 क्रॉस B2 ये क्या करता है? डायरेक्शन वेक्टर्स देता है, 2 डायरेक्शंस. तो ये ईच डायरेक्शन कैन बी टेकन एज पॉइंट. सो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. सो वेक्टर्स जॉइनिंग these 4 points, that is 3 vectors, they will be coplanar. Hence, coplanar vectors, 4 coplanar points giving us 2 intersecting lines. So if the lines are intersecting, then we get what? Lines. 2 intersecting lines एक ही प्लेन में हो सकते हैं, है ना, वो पॉइंट्स के साथ. तो ये ध्यान रखना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो स्क्यू लाइंस बन जाते, कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. In the next video, we will like to focus upon when 2 lines intersect, then what is their a point of intersection. But before that, I would like to focus more upon, because the concepts are not given. Intersecting lines concepts are not given. I'd like to focus upon equation of plane, and then we can move ahead.